اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بچوں، ساتویں جماعت کے۔ آج میں 2-3 دن کے بعد آپ سے آن لائن آف لائن کلاس جو چل رہا ہے اس وقت مخاطب ہونے جا رہا ہوں، چونکہ آپ لوگ سب باخبر ہیں، آپ کے والدین بھی باخبر ہیں۔ اس سال کووڈ سیکنڈ کا جو طوفان شروع ہوا ہے ملک میں اور یوٹی میں بھی، تو اس کی وجہ سے مجبوراً گورنمنٹ کو سکول بند کرنے پڑے۔ اب چونکہ ہم پچھلے سال بھی آپ کو آن لائن آف لائن کلاسز دیتے تھے، آج بھی سرکاری حکم کے مطابق میں اس وقت اپنے سکول گورنمنٹ گرلز مڈل سکول وڈی پورہ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے عزیز بچوں سے اور ان کے پیرنٹس سے۔ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے فون آن رکھیں، جو نمبر فون کے ہیں وہ ہمارے پاس ہے، آپ کے فون نمبر لگے ہیں ہمارے پاس، تو پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ فون پرووائڈ کریں تاکہ وہ ہمارے لیسن سن سکے۔ بچوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ دھیان دیں ہماری طرف تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی لیسن سمجھنے کے لیے۔ میرے عزیز بچوں، آج کل جو ریاست ایک بحران سے گزر رہی ہے، ہر ایک پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، ہمیں بھی محسوس ہے کہ آپ ہم سے دور ہیں۔ کیا کریں، خدا کے طرف سے ہے تو ہم نے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اپنے ہاتھ دھوئیں، ماسک کا استعمال کریں، گھروں میں بھی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے صحت کا پہلے خیال رکھیں۔ تو اس وقت آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، چونکہ ہم نے 2-3 لیسن پڑھے ہیں کچھ دنوں جو موقع ہمیں ملا ہے سکول میں، تو آج آپ کے سامنے میں پھر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا لیسن جو ٹاپک موضوع ہے آج شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ میری طرف توجہ دیجیے، چونکہ دنیا میں برے انسان بھی ہوتے ہیں، اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، برے کام بھی کیے جاتے ہیں، اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں، تو کریڈٹ دونوں کا جاتا ہے۔ اگر کوئی برا کام کرے، مثلا وہ گھر سے نکلے اور اگر کہیں کیچڑ ویچڑ ہوگا راستے پر پھینک دے گا تو یہ اچھی کام نہیں ہے۔ اگر دوسرا نکلے راستے میں دیکھے کہ کچرا پڑا ہے، کہیں لفاف پڑا ہے، اسے اٹھائے، اس آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، یہ بھلے کوالٹی کا آدمی ہے۔ اسی طرح سے ایک بچہ جب پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے کلاس میں، اپنے ماں باپ کا فرمان بردار ہوتا ہے، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کو جا رہا ہے، تو اسے ہم بھلا انسان کہتے ہیں۔ اگر خدا نخواست کوئی بچہ ایسا نکلے کہ وہ اچھا کام نہ کرے بلکہ اس کے کام کرنے سے دوسرے ہمسایوں کو یا جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اس نے برا کام کیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برائی اور اچھائی یہ وہ دو چیزیں ہیں جو زندگی میں لازمی مظلوم ہیں۔ جہاں برائی پنپتی ہے، جہاں اچھائی پنپتی ہے، وہاں برائی بھی پنپتی ہے۔ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں برے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھے لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں تو ہم نے ان کا فالو کرنا ہے، ہم نے بھی اچھے کام کرنے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ اس طرف ہے تو بتائیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے یا برا کام کرنا چاہیے؟ مجھے امید ہے کہ اکثر بچے آپ میں سے جواب دیں گے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو لیجئے آج کا موضوع بھی یہی ہے ہمارا، بھلے اور برے کی پہچان۔ بھلے اور برے کی پہچان، بھلے اور برے کی پہچان، یہی ہے ہمارا آج کا موضوع۔ بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہی ہم نے آج پڑھنا ہے۔ نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، نیک آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے کہ اس کے دشمن بھی متاثر ہو جاتے ہیں، جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ایک کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کا نام چندن ہے۔
चंदन के पास कुल्हाड़ी होता है। कुल्हाड़ी तो आपके घरों में भी होती है, जिसे हम कश्मीरी में तबर कहते हैं। कुल्हाड़ी इसे काटती है, मगर वो इसकी धार को खुशबूदार कर देता है। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवाओं के सरों पर जगह पाता है। और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। एक बहुत ही अच्छा मौजू आपके सामने आया है, वो ये कि चंदन क्या है और कुल्हाड़ी क्या है। मैं आपको समझा देता हूं। चंदन कुल्हाड़ी के साथ काम करता है, कुल्हाड़ी इसे काटती है। कुल्हाड़ी जो होती है, जो तबल जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं, उसका काम है काटना, वो काटती है। मगर वो काटती है, मगर वो इसकी धार को खुशबूदार बनाता है। चंदन को जो जिसे कुल्हाड़ी काटती है, चंदन एक लड़की का नाम है। तो ये जो जब कुल्हाड़ी से हम काटते हैं, तो ये इसकी दाल कहते हैं जिसे काटा जाता है, उसको खुशबूदार बना, क्योंकि चंदन खुशबूदार होता है। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवाओं के सरों पर जगह पाता है। चंदन को तभी ये खुसूसियत हासिल है कि उसमें ये काटती है कि बुराई उसके साथ कुल्हाड़ी करती है, मगर वो कुल्हाड़ी की धार को खुशबूदार बनाता है। यही वजह है कि हमारे जो मंदिर होते हैं, उनमें वो चंदन के लिए जगह ऊपरी सतह पर होती है, देवाओं के सरों पर। और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। उसको कुल्हाड़ी क्या चुका, कुल्हाड़ी जो है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, क्योंकि कुल्हाड़ी काटती है, चंदन खुशबू देती है। कुल्हाड़ी के साथ क्या होता है, जब उसकी धार कमजोर पड़ जाती है, जब वो काटने के काबिल न रहती है, तो उसको हम आहंगर के पास ले जाते हैं। वो इस कुल्हाड़ी को आग में डालता है, आग से वो गर्म हो जाती है, फिर हथौड़े से उसको पीटा जाता है, ताकि उसकी धार फिर इस काबिल बन जाए कि वो काटने के काबिल बन जाए। यानी चंदन को ये खुसूसियत हासिल है अच्छाई के लिए कि उससे खुशबू निकलती है। कुल्हाड़ी जो काटती है, बुरा काम करती है, उस पर थप्पड़ पड़ते हैं, कुल्हाड़ी के थप्पड़ पड़ते हैं। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं, जो भले आदमी होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, उसकी क्या खुसूसियत है? खुसूसियत यह है कि वो सादा मिजाज होता है, मिजाज का वो तुंद नहीं होता है, कलाम बड़ी अच्छी नाजुक अंदाज में करता है, इस तरह से कलाम करता है कि दूसरा खुश हो जाता है। और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। जो अच्छे इंसान हैं वो उस पर मुकम्मल राजी होते हैं, फुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो कुछ खुदा ने दिया है वही इस्तेमाल करते हैं, परेशान नहीं रहते, दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद होते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं, नेक इंसान होते हैं, उनको ज्यादा ख्वाहिश दुनिया की नहीं होती, बल्कि उतना उस पर सब्र करते हैं जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है। हर हाल में खुश रहते हैं और फयाजी के लिए मशहूर होते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं, चाहे कम मिले या ज्यादा मिले, मगर खुश रहते हैं। और खुश रहने के साथ साथ वो फयाजी भी करते हैं। फयाजी करने का मतलब ये है मेरे अजीज बच्चों, हमारे पास 10 रुपए है, हम 10 रुपए में से 2 रुपए किसी मिस्कीन को भी दे देते हैं, तो उसी को फयाजी कहते हैं। यानी उसका दिल तंग नहीं हो जाता है, वो खुश हो जाता है अगर उससे किसी आदमी की मदद हो सके। सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। अच्छा इंसान जो है वो सबों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आता है। शफकत और मोहब्बत आप जानते हैं, जिस तरह से माँ बाप बच्चे के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं, उस्ताद अपने बच्चों के साथ शफकत से पेश आता है। बड़े आदमी जो होते हैं, बुजुर्ग, वो छोटों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं। किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ये लोग किसी से दुश्मनी नहीं रखते। कौन लोग? जो लोग अच्छे होते हैं, जो भले आदमी होते हैं। हर्ष और लालच की इनको हवा नहीं लगती, हर्ष और लालच, उनमें लालच नहीं होती है, उनमें वो हर्ष नहीं होती है कि एक उससे छीना जाए और खुद के लिए हासिल करे, ऐसी बात नहीं है। बेस बुग़्ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता। बुग़्ज़ ऐसा होता है कि इसके पास इतना है, इसको क्यों है, इसे बुग़्ज़ कहते हैं। हसद भी ऐसा ही एक मर्ज है। ये दो चीजें ऐसी बीमारियां हैं जिस इंसान में पड़ जाए वो खराब ही हो जाता है। वो गरीबों की मेहरबानी करते हैं, अपनी
ताजीम की परवाह नहीं करते मगर और उनकी ताजीम करते हैं। अच्छे आदमी जो होते हैं, भले आदमी जो होते हैं, वो और उनकी इज्जत करते हैं। इसमें वो ये ख्याल नहीं रखते कि लोग उसके साथ क्या सलूक करें, बल्कि वो अपनी तरफ से हर एक के साथ अच्छा ही बरता है, हर एक की मदद करते हैं। किसी से जो इसको बुरी मालूम हो, वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं, ये अपने कौल कहते हैं, जो कुछ ये कहते हैं वो ये करते हैं। इनको खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लौ लगी होती है। ये खुदा की अताअत करते हैं, बुजुर्गों की अताअत करते हैं, छोटे बच्चों से मोहब्बत और शफकत बरतते हैं, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। इनमें अल्लाह ने ये जज्बा रखा हुआ होता है। बिलाशुबा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए। जो शख्स इन सिफात के कायल होता है, इन सिफात का मालिक होता है, तो उसे कहते हैं कि ये खुदा रसीदा है, ये खुदा का बंदा है, खुदा से डरने वाला है। तो आज का जो ये सबक है, इसका मतलब ये है कि हमने आज देखा कि अच्छाई क्या है, बुराई के मुतलक इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे। अलबत्ता आपसे मेरी गुजारिश है कि ये जो भले और बुरे की पहचान है, जो पहला पेज हमने इसका पढ़ा, अगर इसमें कहीं आपको मुश्किल आ जाए पढ़ने में कोई लफ्ज, मेरा फोन नंबर जो आपके पास लगा है कांटेक्ट कर देना। तो घर में 2-3 दफा पढ़ना और अपने रफ पर लिखना, पेज जिसे हम कहते हैं डेली पेज, ये लिखना। जहां कहीं भी कोई लफ्ज आपको मुश्किल लगे तो कांटेक्ट हमसे कीजिए, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज के इस सबक पर अपना पूरा ध्यान देकर मुझे कल आप फीडबैक देंगे। फीडबैक का मतलब यह है कि सर हमने समझा है, हम कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। तो जो आप पेज लिखेंगे, जिसको मैं कहता हूं कि ये घर में लिखो, उसका मतलब यह है कि आपकी एक तो हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगा, लिखना तो आ जाएगा, और पढ़ने में भी अगर कहीं दुश्वारी होगी तो हमसे राब्ता करना। बाकी वसलाम, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन।